So question number 12 with us is, which of the following functions are decreasing on 0 to pi by 2? So I will do two parts. Okay, so I'll be doing एक पार्ट सेकंड करूंगा, y is equals to cos 2x, differentiating both sides with respect to x, d by dx of y is d by dx of cos 2x, dy by dx is minus sin 2x into d by dx of 2x. dy by dx is equals to minus sin 2x into 2. And dy by dx is equals to minus 2 sin 2x. ये हमारे को क्या मिल गया? ये हमारे को मिल गया। अब आप यहां पे देखिए, if x belongs to, ध्यान से देखना, if x belongs to 0 to pi by 2, it means 2x belongs to 0 to pi. ये बात समझ रहे कि अगर x 0 to pi by 2 पे है तो 2x डबल ही होगा x का। सो 0 का डबल 0, pi by 2 का डबल pi, तो 2x belongs to 0 to pi. This implies that अगर हम लोग यहां पे बात करें तो therefore sin 2x is greater than 0 if x belongs to 0 to pi by 2. This implies that 2 sin 2x is also greater than 0 if x belongs to 0 to pi by 2. And this implies that minus 2 sin 2x is greater than 0 if x belongs to, minus 2 sin x is less than 0. Minus लग गया ना, तो it is less than 0 if x belongs to 0 to pi by 2. लेकिन minus 2 sin x का मतलब क्या? dy by dx. dy by dx is less than 0 if x belongs to 0 to pi by 2. Right? तो ये हमारे पास आ गया dy by dx is less than 0 if x belongs to 0 to pi by 2. So this is done. Now हमारे पास क्या रहेगा? हमारे पास रहेगा कि fx is decreasing, या y is decreasing, whatever you say, fx is decreasing if x belongs to 0 to pi by 2. ये तो आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब फर्स्ट पार्ट भी बिल्कुल सेम है, फोर्थ पार्ट भी बहुत इजी है, बिकॉज फोर्थ पार्ट का जब आप डेरिवेटिव लोगे ना वो sec स्क्वायर x बन जाएगा। और आपको पता है स्क्वायर फंक्शन हमेशा क्या आता है? डिक्रीजिंग होता है। स्क्वायर फंक्शन इज ऑलवेज डिक्रीजिंग।
अभी यहां पर हमारे पास क्या है, cos x आपके पास माइनस साइन x हो जाएगा, cos 2x आपके पास क्या हो जाएगा, -2 sin 2x हम लोगों ने कर दिया, और ये आपके पास -3 sin 3x होगा। नाउ यहां पे अगर आप इसको देखें, इस वाले पार्ट को, इसको ध्यान से अब आपने देखना है। ये हमारे पास क्या आएगा, ये हमारे पास आएगा थर्ड पार्ट, y is equals to sin और y is equals to cos 3x। differentiating both sides with respect to x, dy by dx is equals to d by dx of cos 3x। dy by dx is equals to, यह आ जाएगा -sin 3x into d by dx of 3x। dy by dx is -3 sin 3x। अब ये हमारे पास क्या आ गया, dy by dx is -3 sin 3x। अब यहां पे देखिए, ध्यान से समझना, कहता है if x belongs to 0 to pi by 2, 3x belongs to 0 to 3 pi by 2, this implies that, अब यहां पे क्या है, sin x is, अब sin x is greater than 0 if 3x belongs to 0 to pi and ये sin 3x आएगा, यहाँ पे sin x की बजाय हम इसको लिखेंगे, क्योंकि हम 3x की बात कर रहे हैं। So this is sin 3x is greater than 0 and sin 3x is less than 0 if 3x belongs to pi to 3 pi by 2। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ, लेट अस अंडरस्टैंड इट, कि इसका मतलब हुआ यहां पे पार्टीशन कर लेते हैं, 1 मिनट रुकिएगा। अब देखें यहां पे हमारे पास क्या जाएगा, दिस इंप्लाइज दैट इफ यू सी, तो हम कह सकते हैं कि sin 3x is greater than 0 if x belongs to 0 to pi by 3, 0 to pi by 3, क्योंकि अब हम इसको 3 से डिवाइड करके देख रहे हैं कि x कहां लाई करेगा, and sin 3x is less than 0 if x belongs to pi by 3 to pi by 2। now or this implies that -3 sin 3x is less than 0 if x belongs to, अब इसमें ना हमारे पास दो इंटरवल्स में ब्रेक करना पड़ गया हमें, and 3 sin -sin 3x is greater than 0 if x belongs to
π/3 to π/2। हम कह सकते हैं कि therefore dy/dx is less than 0 if x is belongs to 0 to π/3 and dy/dx is greater than 0 if x belongs to π/3 to π/2। Therefore ये सब बातें हो गई, तो हम कहेंगे f या y is decreasing if x belongs to 0 to π/3 and y is increasing if x belongs to π/3 to π/2। ठीक है, अब ये सारी चीजें हमारे पास यहाँ पे मिल गई। अब इसमें दोनों चीजों को जब हम क्लब करेंगे ना, तो हम इसको, क्योंकि अब आधे इंटरवल में डिक्रीजिंग हो रहा है, आधे इंटरवल में इंक्रीजिंग हो रहा है, तो देयरफॉर हम क्या लिखेंगे, हम कहेंगे कि y is neither increasing nor decreasing if x belongs to 0 to π/2। तो इस तरह से अगर हमारे पास आधे इंटरवल में फंक्शन इंक्रीजिंग कैरेक्टर शो करे और आधे में डिक्रीजिंग कैरेक्टर शो करे, तो इट मींस कि वो हम लोग उसके लिए लिखेंगे इट इज नीदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग, राइट। तो आप बच्चे क्या करें, आप इसको जरा एक बार समझे, ट्राई टू अंडरस्टैंड इट, एंड देन हम उसके बाद अगले क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 13 हमारे पास है, ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरवल द गिवन फंक्शन f(x), सो given function is f(x) is equals to x raised to power 100 plus sin x minus 1। Differentiating both sides with respect to x, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा d/dx ऑफ f(x) is equals to d/dx of x raised to power 100 plus sin x minus 1, and this implies that f dash x is equals to 100x raised to power 99 plus cos x। अब ये हमारे पास हो गया, राइट, ये हमारे पास क्या आ गया, ये हमारे पास डेरिवेटिव आ गया। अब बोलता है ये जो 0 to 1 यहां पे लिखा है ना, दिस 0 to 1, 0 to 1 का मतलब है कि ये रेडियन की बात कर रहा है। तो आप में से मुझे कोई बता सकता है कि 1 रेडियन किसके बराबर होता है? शाबाश मेरा पुत्र, खुश कर दिया तूने मुझे। तो अब यहां पे क्या होता है, देखिए, फ्रॉम हम इसको लिखते हैं, नाउ फ्रॉम हमने इसको बारी बारी से इन इंटरवल्स के ऊपर चेक करना है।
फ्रॉम या इन द इंटरवल 0 to 1, अगर मैं इसको ऐसे बोल दूं, इन द इंटरवल 0 to 1, ध्यान से देखना, 100 raised to power x, 100 into x raised to power 99 is greater than 0. ठीक है, cos x is greater than 0 क्योंकि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में फॉल करेगा. Therefore 100x raised to power 99 plus cos x is greater than 0. अब आप सोचोगे ये क्या कर रहा है, हम बताने की कोशिश कर रहे हैं कि f dash x जो है वो greater than 0 होगा. Therefore fx is an increasing function. It is an increasing function if x belongs to 0 to 1. This is first part. Number 2, pi by 2 to pi. अब हम बात करेंगे इन द इंटरवल pi by 2 to pi. अब इसमें देखें, इन द इंटरवल, ये जो pi by 2 to pi है ये सेकंड क्वाड्रेंट में फॉल कर रहा है, राइट. अब आप यहां पे देखें मेरे बच्चे, 100 raised x raised to power 99 will be greater than 0. ठीक है, of course cos of x is less than 0, बट इसमें एक चीज क्या है, बट मिनिमम वैल्यू ऑफ cos x is -1. मिनिमम वैल्यू ऑफ cos of x is -1. Therefore हमारे पास 100x raised to power 99 minus 1 plus cos x will be greater than 0 for all x belongs to, क्योंकि ये -1 है, 100x raised to power 99 will always be greater than 1. 1 minus 1 अगर होगा भी, मैक्सिमम वैल्यू इसकी -1, मिनिमम वैल्यू इसकी -1 है, तो ये कभी भी नेगेटिव नहीं होगा, ये हमेशा 0 ही होगा. तो हम लोग यहां पर भी कहेंगे दिस इंप्लाइज दैट f dash x is greater than 0 if x belongs to pi by 2 to pi, if x belongs to 0 to pi. Therefore fx is an increasing function if x belongs to pi by 2 to pi. और थर्ड तो वैसे ही आपके पास है. अब fx जो है हमने यहाँ पे इंक्रीजिंग शो कर दिया, fx यहाँ भी इंक्रीजिंग है, fx इधर भी इंक्रीजिंग ही होगा. ठीक है, तो माय आंसर विल बी नन ऑफ दिस. ठीक है, यहाँ पर भी क्योंकि अगर हम थर्ड पार्ट की बात करें तो 100x raised to power 99 plus cos x will be greater than 0 if x belongs to 0 to pi by 2. Therefore f dash x is greater than 0, x belongs to 0 to pi by 2, and hence fx is an increasing function. तो हमारे पास इन तीनों केसेस में, फर्स्ट 3 केसेस में इट वाज एन इंक्रीजिंग फंक्शन,
तो इसलिए आंसर विल बी नन ऑफ दिस। तो इंक्रीजिंग फंक्शन इफ x बिलोंग्स टू 0 to π/2। शाबाश, आप इसको नोट करिए, फिर हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। Okay, look at the next question. This is very simple question. Question is, for what value of a the given function fx is equals to x square plus ax plus 1. Differentiating both sides with respect to x, d by dx of fx is equals to d by dx of x square plus ax plus 1. ये आपके पास बन जाएगा f dash x is equals to 2x plus a. Great. अब इसने हमें क्या बोला, if x belongs to 1 to 2, f dash x is 2 plus a. इसको हम ऐसे बोलते हैं, if x belongs to 1 to 2, then fx is increasing if f dash x is greater than 0, 2x plus a is greater than 0, or a is greater than if a is greater than minus 2x. हमें कुछ नहीं करना, हमने देखना है कि ये जो इसकी लिमिट्स हैं वो 1 और 2 के बीच में लाइक कर रही हैं। तो एट द लोएस्ट वैल्यू ऑफ x, a is x equals to 1, a is greater than minus 2. Therefore, a is, अब इसने क्या बोला, इसने बोला फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ a, सो a की वैल्यू ग्रेटर देन -2 fx is increasing on 1 to 2. It was a simple question. तो अब देखिए इसको, नेक्स्ट पे चलते हैं। चलिए जी अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये बोलता है लेट आई बी एनी इंटरवल डिसजॉइंट फ्रॉम -1 and 1, मतलब -1 और 1 के बीच की वैल्यूज नहीं लेनी, बाकी हम कुछ भी ले सकते हैं। तो fx is equals to x plus 1 by x,
differentiating both sides with respect to x, क्या आ जाएगा आपके पास? डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स इज 1 प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ 1 अपॉन एक्स, 1 प्लस इसको हम लिखेंगे डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स रेज टू पावर माइनस 1, 1 प्लस इसको हम लिखेंगे माइनस एक्स रेज टू पावर माइनस 2, एफ डैश एक्स आपके पास आ जाएगा 1 प्लस 1 माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, और एफ डैश एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। तो आगे हमारे पास क्या है? फॉर fx to be increasing, x square minus 1 upon x square is greater than 0. और x square minus 1 is greater than 0 और x square is greater than 1, और हम इसको एज इट इज पे रहने देंगे, तो भी आपको पता है कि आपके पास क्या आएगा? x square minus 1 is greater than equal to 0 में आप क्या लिखेंगे? You will be writing it as x plus 1 into x minus 1 is greater than equal to 0, and therefore x belongs to नहीं, ग्रेटर देन 0 ही आएगा, इंक्रीजिंग है, सॉरी, ये ग्रेटर देन 0 ही आएगा। x belongs to minus infinity to minus 1 union 1 to infinity. This implies that x does not belongs to minus 1 to 1. Therefore, x is disjoint from minus 1 to plus 1. Proved. This was the very simple thing जो आप नोट करेंगे और समझेंगे। तो आज हम इसको इतना रखते हैं, कल आगे कंटिन्यू करेंगे इससे, जो भी आपने किया होगा उससे आगे हम लोग लेके चलेंगे। सो बाय फॉर टुडे, टेक केयर एंड जय हिंद।